Hello friends, today we will discuss about ISO 45001, which is actually Occupational Health and Safety Management System. That means today we will be actually doing an audit in all practical terms. आज हम audit करेंगे, एक सिनेरियो लेके आज हम audit करेंगे और audit में हम लोग बताएंगे कि कैसे audit करना है आपको. See, basically this audit is little tough, थोड़ा technical है. इसमें आपको actually audit के clauses, sections का references आपको देना पड़ेगा. तो in this video we will explain you how you have to do the audit using all these sections and clauses. So please listen to this video carefully. हम पूरा completely discuss करेंगे. Also we will use one example. Okay, this is an example. This example हम लोग इस्तेमाल करके वो example में आप कैसे ये clauses and sections आपको reference में डालना है. Okay, see basically आप audit करने के लिए you will use this document. This document is ISO 45001 international standard and ये document actually आपका reference guide है. Okay, this is the reference guide which you have to use for doing all the audit. दुनिया में किधर भी audit करेगा ISO standard से ये ही document इस्तेमाल करेगा, which we are using now. And this document is easily available in the internet. अगर आपको download कर सकता है तो करो. अगर if you are not possible, if you are not getting it, please WhatsApp me. My WhatsApp number is already described in the description of every video that we are uploading. And you can just message me that you need this document. I will send you. Along with this document, we have one Word file, Excel file also. Okay. And this Excel file, I will explain you how you have to use this. Okay. This is very important Excel file or this makes your life very easy. Because जो question आपको जाके organization में पूछना है, the type of questions that you have to go and ask while doing the audit is being clearly listed in this document. So this will be very easy for you to actually conduct the audit. Okay, and audit करने के लिए actually audit का एक training program भी है, which is lead auditor training program for safety management system. For doing the safety audit, actually we do this ISO 45001. This is a standard, and उसके लिए एक training program भी है, which is actually, see, always while doing this training program, you should go for lead auditor training program. Okay, misguided होके कभी internal auditor training program में जाना नहीं चाहिए, because that will be actually wasting your money. I'm talking in terms of money terms. I'm telling, go for lead auditor training because lead auditor training का value ज़्यादा है, not like internal auditor training. Okay, and all these things we will discuss in another video. आज हम basically discuss करेंगे कैसे आपको audit करना है और audit करने के time में references, clauses आप कैसे डालना है, and audit का sections क्या क्या है, and क्या क्या questions आपको पूछना है. ओके, सो देखो ऑडिट के लिए फर्स्ट सेक्शन, पहला वाला सेक्शन, स्कोप, नॉर्मेटिव, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, प्लीज डोंट इन्वॉल्व इन दैट. ये सब हमको जरूरत नहीं है. वी विल सी फ्रॉम दिस वन, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन. दिस इज द फर्स्ट सेक्शन. तो उसमें लीडरशिप के बारे में बात किया है, OHS पॉलिसी के बारे में बात किया है, देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात किया है, कंसल्टेशन और वर्कर पार्टिसिपेशन के बारे में बात किया है. सो दीज आर द सेक्शंस एंड सेक्शंस के अंदर क्लॉसेस है. तो बेसिकली आपको इधर क्या करना है, देखो, कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर. ओके, जस्ट आई एम क्लिकिंग दैट, तो डायरेक्टली सेक्शन में गया, कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर. ओके, तो उसमें वर्कर पार्टिसिपेशन के बारे में बोला है. देखो, प्रोवाइड मैकेनिज्म, टाइम, ट्रेनिंग एंड रिसोर्स नेसेसरी फॉर कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन. मतलब वर्कर को कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन के लिए टाइम देना है, रिसोर्स देना है. सो दैट इज द ISO क्लॉज 5.4.A. ऐसा आपको रेफरेंस देना है. 5.4.A में बोला है कि देखो, वर्कर के लिए टाइम देना है, वर्कर के लिए कंसल्टेशन के लिए टाइम देना है, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको रिसोर्स देना है. तो दिस इज द क्लॉज. तो बेसिकली आप ऑडिट करते वक्त आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि ये वाला क्लॉज उधर सेटिस्फाइड है क्या नहीं. अगर वो सेटिस्फाइड है तो दैट इज ग्रेट. इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड, यू विल रेज NCR. NCR मींस नॉन कंफर्मेशन रिपोर्ट. ओके, तो ये काम आपको आसान करने के लिए वी हैव एक्चुअली डिवाइस्ड दिस एक्सेल शीट. उसमें देखो 5 लीडरशिप का. ओके, तो लीडरशिप कमिटमेंट सब बोल के बहुत सारा क्वेश्चन है. देखो, हैव द टॉप मैनेजमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप कमिटमेंट दिया है क्या नहीं. ओके, 5.4 5.1 में क्या बोला है, 5.1 में टॉप मैनेजमेंट के लीडरशिप के बारे में बताया है. उन लोग डेमोन्स्ट्रेट किया है क्या, लीडरशिप एंड कमिटमेंट किया है क्या, बताया है. ओके, तो 5.4 जैसा हम लोग ने अभी डिस्कस किया था. सी 5.4,
5.3 and 5.4. देखो 5.4 में has the organization implemented okay provide mechanism training resources necessary for worker consultation and participation. ये क्वेश्चन आपको पूछना है उधर जाके, और अगर पूछने के बाद एविडेंस क्या आपको मिला है, एंड इफ एविडेंस में अगर ओके है तो देन इट इज फाइन, इफ इट इज नॉट ओके देन इट इज एनसीआर. ओके, समझ में आया? तो वैसे बहुत सारा सेक्शन है, लाइक लीडरशिप है, प्लानिंग है, सपोर्ट है, ओके, ऑपरेशन है, देन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, इंप्रूवमेंट है, राइट? Like this there are various sections, so each section तो लाइक दिस एक एक सेक्शन हम लोग देखना है. लीडरशिप के बारे में जैसा हम देखा, प्लानिंग के बारे में देखना है, सपोर्ट के बारे में देखना है. देखो सपोर्ट के बारे में कम्युनिकेशन के बारे में बताया है, इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में. तो देखो इधर हमको देखना है इंटरनल कम्युनिकेशन. सो इंटरनल कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश्ड है क्या नहीं, दैट इज डिस्कस्ड इन 7.4.2.a एंड बी. ओके, इंटरनल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया है 7.4.2.a एंड बी. तो 7.4.2.a में क्या बोला है, इंटरनल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू OHS मैनेजमेंट सिस्टम टू वेरियस लेवल्स. ओके, सबको इंटरनली कम्युनिकेशन सिस्टम दिया है क्या नहीं, हम डिस्कस किया है क्लॉज सेक्शन में 7.4.2.a. तो ये आसान करने के लिए हमारा जो वर्ड फाइल में 7.4.2.a 7 हम पकड़ा, 7 में 7.4.2.a देखो इंटरनल कम्युनिकेशन. तो इंटरनल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग चेंजेस टू द OHS मैनेजमेंट सिस्टम किया है क्या नहीं, ये हम पूछ रहे हैं. सी बेसिकली द ब्यूटी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज, आप सोचेंगे कि ये तो PDF में तो ऑलरेडी है, फिर ये एक्चुअली वर्ड, ये एक्सेल फाइल का, ये जो फाइल का क्या जरूरत है आप पूछेगा मुझे. ओके, सी बेसिकली ये बात समझने के लिए ये एक्सेल, ये PDF फाइल आप डाउनलोड करना है. देखो ये PDF फाइल डाउनलोड करने में आपको समझ में आएगा कि देखो दिस PDF फाइल इज वेरी बिग, 52 पेजेस का है. तो इसमें एक एक सेक्शन, एक एक क्लॉसेस अगर आपको पकड़ना है तो आपका जिंदगी बहुत कठिन हो जाएगा. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो टू मेक योर लाइफ इजी वी हैव दिस डॉक्यूमेंट. दिस इज वेरी वेरी हैंडी. ओके, तो इसमें एक एक क्लॉज एक एक करके बताया है, उसमें एक एक क्या क्वेश्चंस आपको पूछना है, एंड इजिली यू कैन रेफर टू विच sections we are actually talking about. Okay, so now we can go for an actual audit process. Okay, ये एक सिनेरियो है ऑडिटिंग का, ये एक सिनेरियो है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सिनेरियो. तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा क्लॉसेस एक्चुअली ये सिनेरियो में प्रॉब्लम है. देखो पूरा क्लॉसेस आपको बोलने का कुछ जरूरत नहीं है. ओके, और दूसरा एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये क्लॉसेस आपको एक्चुअली बाय हार्ट करने का भी जरूरत नहीं है. 7.4.2.a ऐसा कुछ करके बाय हार्ट करने का जरूरत नहीं है. ओके, दिस यू कैन एक्चुअली यूज while doing the audit. ओके, आप ऑडिट करते वक्त आपको ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट आपके पास रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड दूसरा बात, आपको ये सिनेरियो देगा. देखो ये सिनेरियो एक्चुअली आपका कंपनी जैसा समझो. ओके, आप एक कंपनी में ऑडिट करने को गया, तो आपने वो कंपनी में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आपने देखा, तो आपको देखना है उसमें ये कंपनी में कौन सा क्लॉसेस एक्चुअली सेटिस्फाइड नहीं है. और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो व्हाट यू विल से, दिस इज NCR, नॉन कंफर्मेशन रिपोर्ट. उसमें देखो आप जब ऑडिट करते वक्त आपको जो पॉइंट्स मिला वो आप लिखना है. इट कैन नॉट बी दैट यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स. जो पॉइंट, दिस ऑडिटिंग डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. अगर मैं ऑडिट करेगा तो मुझे 4 पॉइंट मिलेगा, अगर आप करेगा तो 10 पॉइंट मिलेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पीपल ऑल्सो. ओके, so let us see this one. This is actually a burger packing machine station at a food processing organization. Okay, एक food processing organization है और एक ये है एक burger packing machine है. You ask an experienced operator if things ever go wrong with the machine that automatically folds up the cardboard to form the box that contains the burger. तो एक burger packing machine
फूड प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो आप एक एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर को पूछा इफ थिंग्स एवर गो रॉन्ग, बिकॉज वो मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, कार्डबोर्ड को फोल्ड कर रहा है। ओके, द ऑपरेटर said that yes the machine stops because sometimes the cardboard jams in the roller. कभी कभी ये मशीन बंद हो जाता है बिकॉज कार्डबोर्ड जाम हो जाता है। The operator said that I am not sure if we are supposed to do this, but because it is such simple thing to fix, we usually just take off the guard. हमको put out all the jammed cardboard and restart, and it's never caused any problem. तो ऑपरेटर को पूछा कि ये जो मशीन का कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम? तो वो बोला कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ होगा तो कभी कभी होगा, तो जब जाम होने से हम क्या करते हैं, हम ही खुद उसको ऑपरेट करते हैं, हम ही खुद उसको मेंटेनेंस करते हैं। ओके, वी आर ओनली डूइंग दैट मेंटेनेंस एक्टिविटी। हम ही उसका गार्ड निकाल के हम ही एक्चुअली उसका फिक्स कर देते, उसका रिपेयर कर देते। You ask if there is a formal procedure or instruction for unjamming an operator. Unjamming an operator says not as far as I know. आप पूछ रहे हैं कि यू आस्क इफ देर इज ए फॉर्मल प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन फॉर अनजामिंग एन ऑपरेटर। आप पूछ रहे हैं कि कोई प्रोसीजर है क्या, ये जो मेंटेनेंस करने के लिए कोई प्रोसीजर है क्या पूछते, तो ऑपरेटर बोलते हैं नो एज फार एज आई नो, नॉट एज फार एज आई नो, मुझे मालूम नहीं उसके बारे में। लेटर दैट डे यू रिव्यू ए प्रोसेस डायग्राम एंड फाइंड इंस्ट्रक्शंस फॉर अनजामिंग द मशीन। उसके बाद आप जब प्रोसेस डायग्राम चेक करते वक्त आपको एक इंस्ट्रक्शन मिल गया, एक प्रोसेस डायग्राम एंड फाइंड इंस्ट्रक्शंस मिल गया। ओके, इंस्ट्रक्शन नंबर है 4/22। वो भी 6 महीने पहले इश्यू किया हुआ इंस्ट्रक्शन है। वो इंस्ट्रक्शंस क्या बोलता है, मेंटेनेंस, इट स्टेट्स दैट मेंटेनेंस शुड बी कॉल्ड व्हेनेवर द जाम मशीन जम्प्स। इट सेज दैट मेंटेनेंस शुड बी कॉल्ड व्हेनेवर द मशीन जम्प्स। मशीन जाम होने से मेंटेनेंस को कॉल करना चाहिए, राइट? दैट इज द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन 4/22 इश्यूड 6 months earlier। लेकिन ये जो ऑपरेटर क्या बोल रहे हैं उनको मालूम ही नहीं है, और वो खुद गार्ड निकाल के मशीन का मेंटेनेंस कर रहा है। तो आप बताइए, कमेंट्स में बताइए वेदर दिस इज एक्चुअली a non-conformance, whether this is actually against the process of the industry, against the instruction, against the control procedure, against the control procedure जो इश्यू किया है 4/22 6 months पहले जो इश्यू किया है उसके अगेंस्ट है क्या, हाँ या ना बताइए, कमेंट्स में बताइए। yes exactly, this is actually against the control instructions number 4/22। ओके, 6 महीने पहले जो बताया है उससे अगेंस्ट है। तो हमको बताना है बेसिकली ये कौन सा ये जो पॉलिसीज है, ये जो प्लानिंग, सपोर्टिंग, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसीजर, इवैल्यूएशन, उनमें से विच क्लॉसेस को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, सो विच क्लॉसेस आर एक्चुअली बीइंग नॉट टेकन केयर, वो हमको बताना है। ओके, तो उसके लिए एक्चुअली हम क्लॉसेस देखेंगे। ओके, एक एक क्लॉसेस देखेंगे। तो आपको सिनेरियो समझ में आया? सिनेरियो इज वेरी सिंपल। एक्चुअली आपको समझना है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गया है ऑडिट करने के लिए, एंड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन जो मशीन में उन लोग काम करता है वो मशीन एक्चुअली मशीन ऑपरेटर ही उसका सर्विस करता है, एंड ऑपरेटर को मालूम नहीं है कि वो सर्विस करने के लिए एक कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है 4/22 इश्यूड 6 months earlier। उसको पता नहीं है कि मेंटेनेंस आदमी को बुलाना चाहिए whenever the machine gets jams, and actually the operator itself is doing the maintenance activity, and this is actually बोलेगा तो this is NCR non-conformation, this is actually against the company rules and procedures। तो आपको इन क्लॉसेस देके आपको बताना है, ओके, आपको इन क्लॉसेस देके आपको बताना है which clause it is actually violating, okay, that you have to say which clause it is actually violating। तो for the easier one we will take, because इतना सारा आपको देखना है, तो easier one we will take actually our this one Excel file। तो उसमें एक्चुअली वर्कर के बारे में देखो, बिकॉज इसमें वर्कर के बारे में बोला है, तो वर्कर के बारे में हम देखेंगे। तो वर्कर के बारे में एक्चुअली 7 में है, वर्कर के अवेयरनेस के बारे में। ओके, बिकॉज वर्कर को मालूम नहीं है कि ऐसा एक बात है, बिकॉज ही डजंट नो दैट एक कंट्रोल प्रोसीजर ऐसा है। ओके, इश्यूड 6 months earlier, ही डजंट नो दैट। सो अवेयरनेस के बारे में देखा, तो अवेयरनेस का क्लॉज है 7.3। 7.3 में बताया है, 7.3 में ए में बताया है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में जानकारी है क्या, OHS पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स,
whether he knows. And 7.3b में क्या बोला है, the contribution to the effectiveness of OHS management system including benefits of improved OHS performance, implications etc. So actually ये 7 में ही आएगा, 7.3 में ही आएगा. Okay, and 7.3, let us check in this 7.3 what 7.3 workers awareness. Actually 7.7.3 is workers awareness. 7.3 workers awareness, उसमें वर्कर को अवेयरनेस है क्या, उसी के बारे में बता रहा है 7.3. तो वर्कर शैल बी मेड अवेयर ऑफ OHS पॉलिसी. 7.3b में कंट्रीब्यूशन टू द इफेक्टिवनेस ऑफ OHS मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, इम्प्रूव्ड OHS परफॉर्मेंस. सो वर्कर को अवेयरनेस नहीं है. ओके, वर्कर को अवेयरनेस नहीं है एक्चुअली हमारा ये सिनेरियो में. इन दिस सिनेरियो वर्कर्स को अवेयरनेस नहीं है. अवेयरनेस किसके बारे में नहीं है? जो सिस्टम्स OHS मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड OHS परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो भी इफेक्टिव कंट्रोल मेजर्स हम लोग ने इंप्लीमेंट किया है OHS मैनेजमेंट सिस्टम्स के थ्रू, दैट अवेयरनेस वर्कर इज नॉट हैविंग. सो 7.3.b एक्चुअली लिखने के बाद आप बोलना है 7.3.b इज बीइंग नॉट सेटिस्फाइड. तो 7.3.b आपको NCR रेज करना है. ओके, समझ में आया? 7.3.b, दिस वन 7.3 इज देयर. आफ्टर दैट 7.3.b, b में आपको NCR रेज करना है. ओके, इसमें A में क्यों नहीं आएगा? बिकॉज पॉलिसी एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कुछ बोला नहीं है. ओके, सो दिस वे यू विल रेज द NCR. आई होप इट इज क्लियर. चाहिए तो ओके, अगर आपको चाहिए तो और एक 2-3 सिनेरियो हम डिस्कस करेंगे. इफ यू वांट प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, अगर आज पूरा एक ही वीडियो में अगर आज पूरा 3-4 सिनेरियो अगर डिस्कस करते वक्त आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, सो दैट इज वाई if you want, if there is a requirement, please comment in the comment section that you want more scenarios to be discussed so that you will be having more knowledge in this. Okay, because this is little technical, you need to have knowledge, then only you will be actually having that competency. Okay, और अगर ऑडिटर का कोर्स करना है तो हमेशा लीड ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम करो. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ यू आर डूइंग लीड ऑडिटर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑलवेज IRCA अप्रूव, IRCA अप्रूव वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम ही करो. इफ यू वांट एनी गाइडेंस ऑन दैट, ओके, प्लीज कॉन्टैक्ट मी, बता देंगे आपको. ओके, थैंक यू.